Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 18 जनवरी के। ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। जो भी दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए सजेशन, नोट्स मैंडेटरी है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं ताकि जब आप रिवीजन करो एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, आपकी ईजिली रिवीजन हो जाए और आपका जो एक कंटेंट है कवर करने में आपको परेशानी ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 75वें इंडियन आर्मी डे की। कब ऑब्ज़र्व किया जाता है आपका इंडियन आर्मी डे? हम हर साल इसको 15 जनवरी को ऑब्ज़र्व करते हैं। रीज़न बीइंग, ये किस लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है इंडियन आर्मी डे? जो हमारे कमांडर इन चीफ थे, जनरल लेट जनरल KM करियप्पा, उनकी अचीवमेंट्स को ऑनर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। 75वां 2023 में हमने इसको ऑब्जर्व किया। 75th एडिशन था 2023 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ये कहाँ पे ओपन करने की बात की गई? इसको मेघालय में ओपन करने की बात की गई। मेघालय में कहाँ पर? शिलोंग में। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब तक इसको बना के रेडी करने की बात की गई? मार्च 2023 तक ये आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया का शिलोंग मेघालय में बन के रेडी हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी ऑयल चीफ सुल्तान अहमद अल ज़बैर को COP28 का क्लाइमेट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। सो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट न्यूज़ मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फिर बात करते हैं सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2029 का एशियन विंटर गेम्स। कहाँ पर? न्यू स्की रिजॉर्ट में ही। बेसिकली इनकी एक न्यू फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट बन रही है विद $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट। इवन आपने सुना होगा लाइन, ये लाइन भी सऊदी अरेबिया ही डेवलप कर रहा है। ये क्या होगी? काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी है और ये बिल्कुल एक डेजर्ट में बनाई जा रही है। इसका काम भी शुरू हो गया और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बेस्ड ये आपकी सिटी रहेगी, जहाँ पे आपकी कार्स नहीं होंगी, रोड्स नहीं होंगी। आप इजीली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू टनल्स, थ्रू वेरियस अदर फीचर्स। आप देखेंगे ये तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक, क्या कहते हैं ना, एकदम साइंटिफिक साई-फाई मूवी से बाहर निकल के आ गई सिटी है। तो ऐसी सिटी ये बनाई जा रही है और यहीं पर
2029 के एशियन विंटर गेम्स कराने की बात की गई बाय सऊदी अरेबिया। और जो ये गेम्स होंगे ये 41st ओलंपिक गेम काउंसिल ऑफ जनरल असेंबली के द्वारा चूज़ किया गया था सऊदी अरेबिया को टू होस्ट दीज गेम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा अभी एक नया टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें जो कूनो नेशनल पार्क था जहाँ पे आपके चीतास को रखा जाएगा वो भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चीतास कहाँ से लाए गए थे? आपके नामीबिया से लाए गए थे। तो मध्य प्रदेश में ही एक नया टाइगर रिजर्व लाने की बात की गई और उस टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना आपको। वो क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगर मैं टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था आपका? टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था आपका? 1973 में। और 1973 में ही अगर आपको याद हो तो चिपको मूवमेंट भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा एक नया टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट में। और क्या नाम रहेगा उस टाइगर रिजर्व का? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा ने सेट किया इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज, काफी इंपॉर्टेंट। देन इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ वाटर शेयरिंग पैक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया प्लेनरी सेशंस ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को। इंडिया एंड यूके कंडक्टेड अ मेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 26 कंट्रीज के लिए। स्टरलाइट पावर ने कमीशन किया 400 किलोवाट का ट्रांसमिशन लाइन इन गुजरात। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इम्पोज किया पेनल्टी ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर। राजस्थान की बात करें, इन्होंने एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने 3 गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड किया एज अ पार्ट ऑफ 770 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, अडानी ग्रुप ने 3 गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड किया एज अ पार्ट ऑफ 70 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। मास्टर कार्ड रिप्लेस करेगा पेटीएम को एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं सेमिकॉन इंडिया। सबसे पहली सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी? बेंगलोर में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर उसके बाद क्या बात हुई कि हम गुजरात को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे सेमीकंडक्टर्स का, जिसके लिए फॉक्सकॉन एंड वेदांता के बीच में एमओयू साइन हुआ। फिर हमने देखा अब क्या हुआ, राजीव चंद्रशेखर इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को। कहाँ पे? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की, जो कि गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। ठीक है, और याद रखना इसी सेरेमनी के दौरान मिनिस्टर्स ऑल्सो अनवेल्ड इसरो का टेस्टेड एंड क्वालिफाइड नेविक रिसीवर चिपसेट को। और नेविक क्या है आपका? बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो वैसा ही आपका सिस्टम है नेविक। और इवन इंडिया के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था कि आने वाले 2023 से जो स्मार्टफोन आएंगे ना, उसमें हम नेविक सिस्टम यूज करेंगे। नेविक सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ योर गूगल मैप्स या फिर गूगल अर्थ की जगह पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। PFRDA agencies become the partner entities with DigiLocker to offer subscriber centric online services। DigiLocker आप जानते ही हैं ये क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने सर्टिफिकेट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपने कार्ड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी कॉलेज की डिग्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपका आधार कार्ड यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे मान लो कहीं पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप 2 व्हीलर से जा रहे थे, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था, तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस आपसे कह रही है कि आप उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, लेकिन आप थे स्मार्ट, आप अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकली कैरी करते नहीं है, आप मोबाइल में एप्लीकेशन में अपने डिजी लॉकर में कैरी करते हैं, आपने तभी वहाँ से निकाल के दिखा दिया। ठीक, तो ये हो गया आपके डिजी लॉकर की फैसिलिटी। इवन पहले क्या होता था, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तो काफ़ी सारे लोकेशंस पे ऑनलाइन अगर आप डिजिटली दिखा रहे हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन विद टाइम, विद अवेयरनेस आप देख रहेंगे कि हर जगह पर अब ये ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है। आपको अपना फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपके फ़ोन में ही अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटी बिहू। कटी बिहू ये एक फेस्टिवल है जो कि आपका जो कटी बिहू है ना, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पहली चीज तो याद रखो, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ का? असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक, फिर आपको याद रखना है यही आपका कटी बिहू, इसका एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए, वो है कोंगाली।
किस नाम से जानते हैं इस कटी बिहू फेस्टिवल को? कोंगाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और हर साल आपका ये कब मिड अक्टूबर में ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल ये 18 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है 2022 में। 2021 में ये 19 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था और 2023 में भी ये 18 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाएगा। कटी बिहू, ठीक है, याद रखेंगे, असम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली किनको कन्फर किया गया था विद द बेस्ट कन्वेंशन सेंटर अवार्ड से? तो वो रहेगा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा को बेस्ट कन्वेंशन सेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको इस अवार्ड से दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बात करते हैं गूगल कहाँ बिल्ड कर रहा है अपना पहला क्लाउड रीजन? तो ये ग्रीस में बिल्ड कर रहा है। अब बेसिकली क्लाउड रीजन ये नहीं होता कि वहाँ पे बादल होंगे। क्लाउड रीजन होता है कि आपका डाटा से रिलेटेड, डाटा को स्टोरेज करना, डाटा का एनालिसिस करना, डाटा को यूज़ करना, तो वो सारी चीज़ें आपके इस क्लाउड रीजन में आ जाती है। और यही कहाँ बिल्ड किया जा रहा है गूगल के द्वारा इनका पहला क्लाउड रीजन? ग्रीस में। नेक्स्ट बात करते हैं अमित शाह की, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अनाउंस किया शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर द पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से क्या बेनिफिट मिलेगा पहाड़ी कम्युनिटी को? कि इनको रिजर्वेशन मिल जाएगी अब कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, ताकि इनके बच्चे को एक बेनिफिट मिल सके, इनको थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो इसीलिए इन्होंने इनको SC स्टेटस अनाउंस कर दिया फॉर पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं, वो कौन सी पहली फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत है इंडिया की? तो वो है केरला की पलमपुरा। त्रिवंतपुरम केरला की पलमपुरा वो पहली फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत बनी है इंडिया की। हाईली इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, पलमपुरा वो पंचायत है त्रिवंतपुरम केरला की, जो कि पहली फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत बनी है इंडिया में। दिस वॉज अचीव थ्रू डिजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट, अंडर विच अराउंड 3300 रेजिडेंट्स को यहाँ पे ट्रेन किया गया था अक्रॉस द एज ग्रुप ऑफ 14 to 65, और इनको डिजिटल एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड की गई थी। बेसिकली डिजिटल एजुकेशन हो गया कि आपको कैसे इंटरनेट यूज़ करना है, स्मार्टफोन्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप एक से दूसरे को कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं, अभी मैं आपको एक डिजिटल मेथड से ही तो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, और आप अपने फ़ोन के थ्रू इंटरनेट की मदद से यूट्यूब पे ही आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक डिजिटल मीडियम है, ये एक डिजिटल एजुकेशन हो गई कि मैं अपने लोकेशन से आप अपनी लोकेशन पे, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ना, लेकिन इंटरनेट की मदद से और स्मार्टफोन्स की मदद से इतना हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हम घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं बिना कहीं बाहर से निकले हुए। ठीक, फिर हम बात करते हैं अमेज़ॉन के द्वारा उनका पहला सोलर प्रोजेक्ट सेटअप किया गया इंडिया में। ये कहाँ रहेगा? राजस्थान में रहेगा। ठीक, आई रिपीट, अमेज़ॉन इंडिया ने सेटअप किया इनका पहला यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर 3 सोलर फार्म्स। कहाँ पर? राजस्थान, इंडिया में, जो कि एक कंबाइंड कैपेसिटी होगी 420 मेगावाट्स की। नेक्स्ट हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन में, अभी यूरोप में क्या था कि जो एप्पल के चार्जर है ना, उस पर बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत चल रही थी कि क्या कि उनकी जो केबल है ना वो अलग है। फिर हम देखें आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की केबल अलग होती है, किसी दूसरे स्मार्टफोन की केबल अलग होती है, लैपटॉप की अलग, आपके ईयरबड्स की अलग। तो इससे क्या होता है? पावर बैंक की अलग दिक्कत हो जाती है, कितने सारी केबल कैरी करे, और इससे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आपका बढ़ता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं एक रूल पास किया गया कि 2024 तक जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना, उन सब की इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट जो होगा, केबल जो होगी, वो सबका सेम होगा। ठीक है, कोई डिफरेंट चेंज नहीं होगा। और इसी को एक्सटेंड कर दिया कि 2026 तक आपके जो चार्जर हैं लैपटॉप्स के, वो भी सेम होंगे सभी के। ठीक है, कैमरास के, लैपटॉप्स के, स्मार्टफोन्स के चार्जर भी सेम रहेंगे। तो ये पास किया गया EU के द्वारा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ICAI। इनके द्वारा अभी फर्स्ट एवर ऑडिट स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया गया फॉर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ICAI क्या है?
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की, वो थी स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स 3000 एश्योरेंस एंगेजमेंट्स टू सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ये क्या है? दिस ऑडिट, जो ये ऑडिट स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है, जो कि ICI के द्वारा डेवलप किया गया ताकि इनके मेंबर्स को असिस्ट किया जा सके इन प्रोवाइडिंग रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस ऑन सच इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब यहीं पे अगर मैं इन सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे एड्रेस की जाएंगी वेरियस थीम्स, और ये सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 16 थीम्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। उनमें से कुछ हैं जैसे हंगर, पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जो आप इसके अंडर आती हैं। ठीक है। ICAI की अगर मैं बात करूं, ICAI आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको फॉर्म किया गया था बाय द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949। ये एक्ट करती है एज ए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग रूल्स इन इंडिया। प्रेसिडेंट कौन रहेंगे यहाँ पे? देवाशीष मित्रा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अनिकेत तलाटी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर अभी रिसेंटली A200XT, ये ड्रोन का नाम है। एस्टीरिया एरोस्पेस कंपनी है जिन्होंने इस ड्रोन को बनाया है। ये एस्टीरिया एरोस्पेस बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये A200XT ड्रोन को बनाया, और इसी ड्रोन को अभी रिसेंटली DGCA का टाइप सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया है। आई रिपीट, A200XT ड्रोन को इनको अभी DGCA का टाइप सर्टिफिकेशन अप्रूवल से सम्मानित किया गया। ठीक है। और याद रखेंगे ये A200XT सेकेंड ड्रोन रहेगा ऑफ दिस एस्टीरिया एरोस्पेस जिनको DGCA टाइप सर्टिफिकेट से अभी अप्रूवल मिला। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो आपके ड्रोन्स हैं ये आपके सिक्योरिटी में मदद कर सकते हैं, ये आपके पेलोड डिलीवरी में मदद कर सकते हैं, यही आपकी फार्मर्स की मदद कर सकते हैं इन इरिगेशन। ठीक है। आपको मान लो पेस्टिसाइड स्प्रे करना है तो उसमें मदद करेंगे, केमिकल स्प्रे करना है उसमें इरिगेशन में मदद कर देंगे, कहीं आपको कोई ट्रांसपोर्ट करना है, कोई प्रोडक्ट को डिलीवर करना है एक जगह से दूसरी जगह, पेलोड डिलीवर करना है, उसमें भी आपके ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक। इवन अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स को आप एज अ बॉम्ब की तरह, मिसाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रशियन एंड यूक्रेन वॉर को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर अभी रशिया के द्वारा ईरानियन ड्रोन्स को यूज़ किया गया टू टारगेट द लोकेशंस इन यूक्रेन, और उन ड्रोन को बॉम्ब बनाकर वहाँ पे अटैक किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया टू बी कवर्ड बाय द डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025 एज पर द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अब इससे क्या होगा? बेसिकली अगर हम वेदर रडार से कवर करेंगे इंडिया को, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे वेदर को एडवांस में। अगर हम वेदर को पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे कि किस एरिया में सूखा पड़ेगा, कहाँ पर फ्लड आने के चांसेस हैं, कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगा, कहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, जो आपके फार्मर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब कहीं पे हमें पता है कि अगले महीने बारिश होने वाली है, तो हम फार्मर्स को ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दें तो वो अपनी जो क्रॉप्स को है, वो फसल है, उसको जब उनको बोना होगा, सो करना होगा, सीड्स लगाने होंगे, तो वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। अब कहीं पे बताया गया कि आपके आने वाले टाइम में 1 महीने तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी, नॉट बारिश नहीं होगी, तो फार्मर्स उसी हिसाब से अपने इरिगेशन का फैसिलिटी पहले से ही रेडी करके रखेंगे कि अगर बारिश नहीं होती है तो हमें इरिगेशन कैसे करना है, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। इससे क्या होगा, हम आने वाले वेदर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उसी हिसाब से हम प्लान्ड एक इकोनॉमी बनते जाएंगे, हम प्लानिंग के हिसाब से आके काम करेंगे। ठीक है। दिस विल एनहेंस द वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज और बेनिफिट करेंगे फार्मर्स को। IMD हैज़ इनिशिएटेड प्रोएक्टिव स्टेप्स इन इंक्रीजिंग द रडार नेटवर्क, जो कि पहले 15 था 2013 में, फिर वो 37 हो गया 2023 तक, और 25 और इसको लॉन्च करने की बात की गई आने वाले 2-3 सालों में। और अगर हम इसकी बात करें ये डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की, ये कब लॉन्च किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ 148 फाउंडेशन डे ऑफ IMD, और ये फाउंडेशन डे कब था? 15 जनवरी 2023 को। और 15 जनवरी को ही हमें पता है क्या आता है हमारा इंडियन आर्मी डे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की गई। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके और रेलवेज़ के द्वारा मिलके इसको खोला जाएगा। रेलवेज़ ने अपनी ज़मीन प्रोवाइड की है ऑफ 9.5 एकड़्स, ताकि यहाँ पर एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा सके जो कि स्पोर्ट्स में बढ़ावा देगा बच्चों को। यहीं पर आपके प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे, यहीं पे आपके इंडोर स्टेडियम्स बनाए जाएंगे जहाँ पे गेम्स सच एज बैडमिंटन, यहीं पर आपका रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, ये जो आपके इंडोर गेम्स है वो खेले जाएंगे। फिर यहाँ पे फुटबॉल फील्ड बनाई जाएगी ताकि जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है वो फुटबॉल खेल सके। ठीक, और भी सारे गेम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे गेम्स के कोचेस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी कि जो बच्चे यहाँ पे रह के बाकी स्टेट से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर रहने की भी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रेलवेज के द्वारा मिलके सेटअप किया जाएगा। ये तो हो गया। अब आपने बताया नहीं सर कहाँ सेटअप किया जाएगा, तो ये वेस्ट बंगाल में सेटअप किया जाएगा, इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वरुणा की। वरुणा क्या है? ये आपकी एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है। अभी इसका 21वां एडिशन था जो हमने ऑब्जर्व किया वरुणा एक्सरसाइज का। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्ट किया? INS चेन्नई ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑलराइट, और ये एक्सरसाइज कब से है? ये आपकी 1993 से हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं एक्सरसाइज को, और 2001 में इसका नाम वरुणा रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, RBI ने अभी एक स्टेट फाइनेंस स्टडी रिपोर्ट को रिलीज़ किया और उन्होंने एडवाइस किया स्टेट्स को ओवर द रिस्क ऑफ रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम। अब हम देख रहे हैं कुछ स्टेट्स अपनी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रही हैं। देखो 2003 तक, 3 से पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगे ना उनकी तो पेंशन है, मतलब जब वो रिटायर होंगे अब तो उनको पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जो 2003 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनकी कोई पेंशन नहीं है, मतलब जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कि महीने के महीने बेसिस पे उनको पैसे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, सरकार ऐसा कुछ नहीं दे रही है। तो अभी रिसेंटली काफ़ी स्टेट्स ये सोच रही थी कि हम पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले जाते हैं, लेकिन RBI ने अभी इसी के खिलाफ उनको एक एडवाइस करी है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से एक थोड़ा सा जो बर्डन हम कह सकते हैं वो इकोनॉमी पे क्यों आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको सरकार को हर महीने एक मंथली पेंशन देनी होती है जब तक वो अलाइव होते हैं। इससे क्या होगा, जब नए एम्प्लॉयज़ आएंगे उनकी भी सैलरी देनी है, और जो रिटायर हो चुके हैं पुराने एम्प्लॉयज़ उनको भी कहीं ना कहीं आधी सैलरी तक तो देनी होती है जो पेंशन के तौर पे जाती है। तो इसीलिए उनको बोला कि जो आपकी बजट है ना उस पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे रिवर्ट होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे अभी धीरे धीरे हमारी जो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, नए नए रूल्स आ रहे हैं, तो जो क्वांटिटी है, जो एक नंबर है एम्प्लॉयज़ का वो भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, एक काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी पे, स्टेट की इकोनॉमी पे। इसीलिए इनको RBI ने एडवाइस किया कि आपको ओल्ड पेंशन पे रिवर्ट नहीं होना चाहिए। फिर सिमिलरली अभी RBI के द्वारा एक इशू गाइडेंस किया गया कि ऑन एक्विजिशन इन बैंक्स प्रोटीन आर्म्स गेट RBI नोड फॉर AA लाइसेंस, अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस का लिए अभी RBI ने अप्रूवल दे दिया फॉर प्रोटीन आर्म को। अगर यहीं पे पढ़ें, RBI के द्वारा इशू किया गया एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज डायरेक्शन 2023, जिसने अलाउ किया प्रमोटर्स टू होल्ड 26% फ्रॉम द करंट 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ अ बैंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। RBI ने अभी अप्रूवल दिया है कि अगर किसी को भी किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है और वो 5% से ज़्यादा उस बैंक का इक्विटी स्टेक बाय करते हैं, तो उसके लिए पहले RBI से इनको अप्रूवल
लेना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल मतलब उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से, जब वो 5% से ज़्यादा स्टेक बाय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो 5% से ज़्यादा स्टेक बाय करते हैं तो उनको बोर्ड की सीट मिलती है, जिसमें उनका से हो जाता है कंपनी के, बैंक के डे टू डे डिसीजन मेकिंग में। तो जिसके लिए अगर उनको 5% से ज़्यादा बाय करना है तो उनको पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक, ये भी न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। अभी वेयर हाउस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक पार्टनर किया गया एसबीआई के साथ, एसबीआई बैंक के साथ, ताकि जो भी फार्मर्स हैं उनको अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है, वेयर हाउस बनाना है या उनको कैसे भी तरह का लोन चाहिए, तो उनको लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपनी डेवलपमेंट की नीड को पूरा कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आने वाले टाइम में हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हम कहें जो वेयर हाउस की डिमांड है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री से अगर हम मैन्युफैक्चरी बनने जा रहे हैं वर्ल्ड की, जैसे चाइना फैक्ट्री है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर किए जाएंगे, तो वेयर हाउस वहाँ पे काम आते हैं। तो सिमिलरली अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली है उनके लिए वेयर हाउसेस की भी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए अगर वेयर हाउस की बात करें या फिर हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इन्होंने बात की कि फार्मर्स को हम लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पार्टनर किया एसबीआई के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिडबी की। सिडबी ने भी पार्टनर किया वीएफएस के साथ ताकि एमएसएमई लोन्स को एक्सटेंड किया जा सके, और यहीं पे बात की गई कि 5 लाख रुपए तक का लोन आपको 13% पर एनम पे प्रोवाइड किया जाएगा। आई रिपीट, सिडबी ने अभी पार्टनर किया वीएफएस के साथ टू एक्सटेंड द एमएसएमई लोन्स, और ये एमएसएमई लोन्स कब तक? अप टू 5 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे, और किस तक? 13% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे ये प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको डायरेक्टली। और इसी स्कीम के अंडर जो वीएफएस कैपिटल है, इनका एम रहेगा 30 से लेके 40 करोड़ रुपए तक के इन दिस फाइनेंशियल ईयर लोन्स प्रोवाइड किए जा सके। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट लोकोमोटिव ऑर्डर जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया टू सीमेंस मोबिलिटी। तो सीमेंस मोबिलिटी को अभी 26,000 करोड़ या फिर हम बोलें 3 बिलियन यूरोस का ऑर्डर प्रोवाइड किया गया फॉर द लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन रेलवेज ने इनको ये ऑर्डर दिया है, और इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंडियन रेलवेज, एक ही बात है, इन्होंने बोला कि हमें 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चाहिए जिनकी 9,000 हॉर्स पावर रहेगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 11 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब 11 साल तक ये हमें लोकोमोटिव, ये जो 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ये प्रोवाइड करेंगे, और आने वाले 2 साल में मतलब 24 महीने के अंदर ये डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे ऑफ दिस लोकोमोटिव। ये जो लोकोमोटिव होंगे ये क्या है? मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ही होंगे। इनकी जो सीमेंट डिज़ाइन ट्रेन्स हैं, इनकी जो स्पीड रहती है वो है अप टू 120 किलोमीटर पर आवर, और जो ये ट्रेन्स होंगी, लोकोमोटिव्स होंगी, इनकी जो असेंबली होगी वो कहाँ पर होगी? दहोड़, गुजरात में इनकी असेंबली होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। गुजरात की मैं बात करूँ तो यहाँ पहला स्टील स्लैग रॉड है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहीं पे आपकी डायमंड माइंस शिफ्टिंग की गई डायमंड्स, आर्टिफिशियल डायमंड्स के लिए, और यहीं पर आपके सेमिकॉन इंडिया, मतलब सेमिकॉन इंडिया में जो बोला बात की गई थी बेंगलोर में कि हम सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, तो वही सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी? फॉक्सकॉन और वेदांता के एमओयू से गुजरात में होगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, रशिया इंडिया का 4th बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्टर बन गया है। लास्ट ईयर की बात करें तो 20th पोजीशन पे था रशिया, इंपोर्टर था इंडिया से, 20th लार्जेस्ट इंपोर्टर। लेकिन जब से वॉर स्टार्ट हुई है और हम देख रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया भी 33 टाइम्स ज़्यादा ऑयल, वर्जिन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रशिया। ठीक है, 33 गुना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया ऑयल का इंडिया में फ्रॉम रशिया। यहीं पर अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने भी जो अपना इंपोर्ट है वो बढ़ा लिया है फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हमने देखा रशिया जो है अपनी पेमेंट, जो इंडिया जो पेमेंट कर रहा है ऑयल की, वो रुपीज़ में कर रहा है। इससे क्या होगा? रशिया के पास पैसा, रुपी एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर वो उसी रुपी की मदद से इंडिया से कई चीज़ों को
इंपोर्ट कर सकता है, मतलब कई चीज़ों को बाय कर सकता है, जिससे क्या होगा, ये एक सर्कुलेशन हो जाएगा मनी का, कि उन्होंने इंडियन रुपीज़ को लाया और इंडियन रुपीज़ को ही उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इनटू द इंडियन इकोनॉमी। तो इसीलिए याद रखेंगे, रशिया अब फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है, इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और अभी डाटा बताया जा रहा है कि $32.9 बिलियन का इन्होंने इंपोर्ट किया टोटल फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर मंथ। अभी भी एक क्वार्टर बाकी है, तो ये डाटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इवन बताया जा रहा है आने वाले टाइम में जो रशिया का इंपोर्ट है माइट रीच $50 बिलियन, और रशिया से वो कुछ ही कदम दूर है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी बन सकता है इंडिया का। ठीक, चलिए, तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे कुछ करंट अफेयर्स। इसी के अलावा अगर मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊं, जैसे अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की, अगर मैं बात करता हूं बैडमिंटन की, विक्टर एक्सेल्सन इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया एट मलेशिया ओपन इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, मेन सिंगल टाइटल जीत लिया। यहीं पे अगर मैं बात करूं जापान की, अकाने यामागुची इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया मलेशिया ओपन का। ठीक, इसी के साथ साथ अगर मैं रेलटेल की बात करूं, रेलटेल को 170.11 करोड़ रुपीस मिलेंगे का ऑर्डर मिला फॉर द पुडुचेरी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। पुडुचेरी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए 170.11 करोड़ रुपीस मिले टू रेलटेल। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर ने डिक्लेयर कर दिया है फ्री एरिया फॉर पर्पस ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस एंड कंटेजियस डिजीज इन एनिमल एक्ट ऑफ 2009 को। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्यूटरी की बात करूं तो मैं जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के, मुकार्रम जय बहादुर, उनका रिसेंटली निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया, मतलब श्रीलंका की क्रिकेट टीम इंडिया में आएगी टू प्ले T20 इंटरनेशनल एंड वनडे इंटरनेशनल सीरीज 2022-23 के लिए, जो कि 3 से लेके 15 जनवरी के बीच में मैचेस अभी चल रहे थे। ठीक, इसी के साथ साथ आप श्रीलंका में देखेंगे तो यहाँ पे जो क्राइसिस है फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है। इवन चाइना ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू चाइना, तो जिसकी वजह से अभी हमने देखा कि इंडिया सामने आया है और इंडिया ने हेल्प की है, इंडिया ने एश्योरेंस दी है, इंडिया ने गारंटी दी है टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि श्रीलंका को आप मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं, तो इन्होंने इनको सपोर्ट किया है। ठीक, तो चलिए अगर हम वन लाइनर करंट अफेयर्स पे आते हैं, आईसीआई ने रिलीज किया फर्स्ट एवर ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। एस्टीरिया एरोस्पेस का ड्रोन रहेगा A200 XT ड्रोन, जिनको अभी DGCA टाइप सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, और ये सेकंड ड्रोन रहेगा एस्टीरिया एरोस्पेस का, जिनको टाइप सर्टिफिकेशन मिला। इंडिया टू बी कवर्ड बाय द डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये न्यूज़ दी। फिर यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने ज्वाइन किया भूमि पूजन को ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेलवेज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि वेस्ट बंगाल में रहेगा। 21वें एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज की बात करें वरुणा की, ये इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच में हुई थी। आरबीआई ने रिलीज किया स्टेट फाइनेंसिस स्टडी रिपोर्ट और एडवाइस किया स्टेट गवर्नमेंट्स को अगेंस्ट गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर प्रोटीन आर्म को अभी आरबीआई का अप्रूवल मिल गया फॉर AA लाइसेंस। आरबीआई ने अप्रूव किया अप्रूवल मस्ट फॉर पिकिंग अप एनी बैंक में, अगर हम अपना इक्विटी स्टेक बाय करना चाहते हैं तो 5% से वो ज़्यादा रहता है, तो हमें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। WRDA ने साइन किया एक MOU SBI बैंक के साथ, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके विद लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। सिडबी ने पार्टनर किया VFS के साथ, ताकि MSME लोन्स को प्रोवाइड किया जा सके अप टू 5 लाख रुपीज़ एट 13% पर एनम। सीमेंस मोबिलिटी ने रिसीव किया 26,000 करोड़ रुपए का लोकोमोटिव ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवेज। रशिया फोर्थ बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्टर बन गया है इंडिया का। श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया T20 खेलने आएगी श्रीलंका की क्रिकेट टीम और वनडे इंटरनेशनल इंडिया में, और ये खेल चुकी हैं 3 से 15 जनवरी के बीच में। बैडमिंटन की बात करें तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता मलेशिया ओपन में, और जापान की अकाने यामागुची इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता मलेशिया ओपन में। मुरक्कम जय बहादुर ये लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के, जिनका भी रिसेंटली
निधन हो गया है। NTPC-REL इन्होंने एक MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ फॉर कोलैबोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। रेलटेल की बात करें, रेलटेल गेट्स 170.11 करोड़ रुपए ऑर्डर फॉर पुडुचेरी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए। जम्मू एंड कश्मीर को डिक्लेयर किया गया फ्री एरिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज इन एनिमल एक्ट फॉर 2009। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला, विदिशा ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस, किस स्टेट में लोकेटेड है ये बताओ। सेकेंड, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, किसके द्वारा रिलीज की गई थी। थर्ड, विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद गरुड़ा एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम। फोर्थ, which state UT suggested the center to grant migrated minority status। और फिफ्थ, पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये एक फिनोमेना है जो कि देखा गया था न्यूज़ में, ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये हैं आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, क्या आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहें, क्या आप चाहते हैं आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आपको वीडियो समझ आ रही है, कंटेंट समझ आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपको ये वीडियोस डेली लानी है और ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा है। इसी के अलावा अगर आप मेरी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स बाय विकास राणा आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ जो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं वो मिल जाएगी। हम डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स ये सारी वीडियोस अपलोड करते हैं रेगुलरली। इसी के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं वो भी अपलोड करते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, डिफेंस, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर भी आपका कंटेंट अपलोड किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी जो क्विज आपकी कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जाके मिल जाएगी। इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा थ्रू योर जीमेल आईडी और आपको कोर्स भी परचेज करना पड़ेगा। बहुत नॉमिनल सा रेट है, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आपके जो अमाउंट है वो लेस हो जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है एंड बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको हमारा कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इतना जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो पूरे यूट्यूब पर वहाँ आपको कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड आई अश्योर यू कि कैरियर्स क्लाउड और हमारा यूट्यूब चैनल अफेयर्स क्लाउड, दे आर द बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर प्रिपरेशन, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। टॉप नॉच हमारा कॉन्टेंट रहता है एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.